we discussed triangle law, then we discussed parallelogram law, and now I am saying that today we discuss polygon law. So first of all, you have to know what's the need of polygon law. But triangle law या parallelogram law are valid for two vectors. हमें दो वेक्टर ऐड करने थे. If we want to add three vector, four vector, five vector, तो triangle थोड़ा बनेगा 5 वेक्टर में, parallelogram भी नहीं बनेगा. Then we are in need of a polygon to add more than 2 vectors. What's its statement? है आसान. It states that if number of vectors, कई सारे number of vectors कितने भी are well represented in magnitude and direction, magnitude and direction by the sides of an open polygon in same sense या same order, then closing side gives their resultant in opposite order. ध्यान करें. कई सारे वेक्टर है मेरे पास. पहला वेक्टर कह दिया इसने ए, फिर कह दिया बी, तीसरा वेक्टर कह दिया सी, then he said D, and he says find their resultant. वेक्टर की एक सबसे बड़ी एबिलिटी होती है बेटा, एक वेक्टर को हम कहीं भी ट्रांसफर कर दें पैरेलल टू इट, दैट रिमेन्स सेम मीन. यानी चाहे मैंने इसको यहां बनाया और चाहे यहां बनाया, डायरेक्शन सेम रखनी है. अब अगर मैं इसका पॉलीगन बनाऊं तो जनरल रूल क्या कह रहा था, पहले का हेड दूसरे का टेल विद द सेम डायरेक्शन बना. देखेंगे डायरेक्शन में सेम रख रहा, जो डायरेक्शन बी की यहां थी वही यहां पे है, सी. एंड देन डी. अब मैंने नाम देना शुरू किया इसको ओ पी क्यू एम एन. पॉलीगन कब बने ये, जब बंद हो जाए. बंद होने के लिए क्या किया मैंने, ओ को और एन को मिला दिया टू क्लोज इट. ये पॉलीगन बन गए मल्टीपल आर्म्स. ये कह रहे हैं जो क्लोजिंग साइड थी हमारी वो थी ओ एन. According to polygon law, he says ON is equal to OP plus PQ plus QM plus MN, or R vector is A vector plus B vector plus C vector plus D vector. That's our vector A, B, C and D, and that's our vector is R. पॉलीगन लॉ ने बताया कितने भी वेक्टर हों, ये तो बेटा 4 ही थे, 5 हो, 6 हो, 10 हो. Number of vectors are well represented in magnitude and direction by the sides of an open polygon in same order. यहाँ पे same order का मतलब either clockwise or anti-clockwise. Then closing side of the polygon gives the resultant in opposite order. That is, if these are in anti-cloak, this one is cloak. If these are in cloak, this one in anti-cloak. That's your polygon law of vector addition.
क्लियर? Let join OQ and OM. ठीक है, O से Q को ज्वाइन कर दो और O से M को ज्वाइन कर दो. That's it. O से Q ज्वाइन कर दिया, O से M. Now in triangle OPQ. OPQ triangle क्या कहता है बेटा? If two sides of a triangle are in same direction, then third side gives their resultant in opposite direction. That means OQ. Then in triangle OPQ using triangle, अगर मैं ट्रायंगल ला यूज कर दूं तो OQ बराबर होगा बेटे OP प्लस PQ, which is nothing but A plus B. Clear? In triangle OQM बेटे, अब OM इनका रिजल्टेंट होगा. OM should be equal to OQ plus QM, that is A plus B, OQ की वैल्यू QM plus. In triangle OMN OQ, yeah sorry, ON this time the third side is equal to OM plus MN. Now again ON is our resultant. OM vector A plus vector B plus vector C and MN vector D. That's you have to prove. यही पॉलीगन लॉ कह रहा है. अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं निकालना, ना न्यूमेरिकल में आएगा, पर वैसे निकालना भी हो तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का यूज करके इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, फिर इन दोनों का यूज करके इसका, और फिर इन दोनों का यूज करके इसका. इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे. दैट इज द प्रूफ फॉर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Two vector both equal in magnitude. Question number 2. Two vectors both are equal in magnitude. Say A. दो वेक्टर हैं, दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है. Have their resultant equal in magnitude of either. Resultant is also equal to one of them. Find the angle between them. Means calculate the value of theta. All of you know beta, R square is A square plus B square plus 2AB cos theta. He says R is A, that means A square. A square. B is also A square. B is also A. क्लियर है? इसको अपनी तरफ रखा मैंने. 2A स्क्वायर कोस थीटा, एक ए से एक कट गया, दूसरा उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर. कोस थीटा इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर माइनस 1/2. और कोस थीटा माइनस 1/2 कितने एंगल पे होता है? 120 डिग्री. याद रखने की टेबल याद होगी आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45. तो कोस 120 पे माइनस 1/2 होता है. क्वेश्चन नंबर 5 बताइए. मैं रब कर रहा हूं साथ ही साथ अपने को. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. खुद कर लेंगे इसको, दोबारा ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना बताने के बाद तो अब आना चाहिए. बड़े हो गए हैं अब आप, बच्चे नहीं रहे. 2 महीने हो गए हैं कोरोना में आपको. क्वेश्चन नंबर 5. वायरस 2 साल का जब इतना फैलेगा तो आप भी फैलो थोड़े से, है ना? क्वेश्चन नंबर 5. If A plus B
देख रहे हैं ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे वो n टाइम्स है ए माइनस बी मैग्नीट्यूड के। ए और बी की वैल्यू बराबर है, ये कह रहा है ए और बी की वैल्यू इक्वल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट इक्वल टू n टाइम्स a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, बताया था अगर b इधर जा रहा है तो माइनस बी तो इधर जाएगा। यानी पहले मैंने कह दिया, मान लिया a इधर था बेटे, समझना इसको, b इधर था, एंगल कितना था थीटा। अब माइनस बी तो इधर जा रहा है, तो अब a और b के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। सारा एंगल कितना होता है थीटा, अब एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर। तो इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। और सिर्फ एंगल बदल गया ना, यहाँ पे तो एंगल था ए और बी के बीच का थीटा, यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल था 180 माइनस थीटा। और अंडर रूट कट नहीं सकते भाई, यहाँ n है। अब अंडर रूट काटोगे या दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर किया तो क्या बनाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू n, ए स्क्वायर n स्क्वायर हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटे कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा। नोट कर लेंगे जिन्हें ना पता हो, पता है दैट्स गुड। माइनस, ये माइनस आ गया, माइनस 2ab। नाउ कम टू द स्टेटमेंट, ये कह रहा है ए और बी तो बराबर है, यानी बी की जगह अभी कौन है ए है। इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। मेरे को वैल्यू चाहिए कोस थीटा की, तो कोस थीटा वाले मैंने एक तरफ बुला लिए, 2a स्क्वायर तो ये था ही, 2a स्क्वायर कोस थीटा, ये था माइनस, उधर इधर आया तो प्लस n स्क्वायर साथ में रहेगा, n स्क्वायर 2a स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर n स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर उधर चला गया। यहां से देखो क्या कॉमन है, आप देखिए 2a स्क्वायर कोस थीटा कॉमन, 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन n स्क्वायर माइनस 1, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट गया, कोस थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। आंसर आ गया होगा बेटे, यही आंसर है भाई, थीटा बराबर कोस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये जेई में आया हुआ है बेटे, 9th है मेरी बुक में। ए पार्टिकल हैव फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव डायरेक्शंस इसने दे रखी हैं, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर एक पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, पहले जा रहा है वो 12 मीटर ईस्ट में, फर्स्ट ही मूविंग 12 मीटर इन ईस्ट, ओ से चला
कोई भी नाम रख लें, पी पे चला लें। देन ये मूव 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ, and then at last 6 मीटर वर्टिकली अपवार्ड्स। थर्ड जो ये कह रहे हैं 6 मीटर अपवार्ड्स। अब अपवार्ड्स का मतलब था यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ऊपर आ गया। जैसे एक रूम में पहले तो इंसेक्ट चल रहा हो बिल्कुल दीवार के साथ, फिर चला गया वो फर्श के साथ दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है, और फिर वहां ऊपर कॉर्नर पे ऊपर, और आपसे पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा एक तरह से पहले तो इन दो का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, क्योंकि 3 का नहीं था, फार्मूला तो 2 का ही था हमारे पास ट्रायंगल का, एक वेक्टर ये एक ये, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ओ क्यू, और ओ क्यू की वैल्यू चाहे पाइथागोरस थ्योरम कह लेते सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, कोस 90 तो जीरो हो जाता, तो क्या बचता सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ओ क्यू की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट 30। अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे, पहले तो बॉडी जा रही है ओ से क्यू 13, उसके बाद बॉडी ऊपर जा रही है। अब ऊपर वाला मैंने ये ड्रॉ कर दिया भाई, ऊपर मान लिया दूसरी डायग्राम में यही है 6 मीटर। अब यहाँ है वो एम पे है, तो ओ एम कितना होगा, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट 169 प्लस 36। दैट्स योर आंसर इज। आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उससे समझ सकते हैं बेटा, एक इंसेक्ट है वो एक एंड से चलता हुआ, एक दीवार से चलता हुआ दूसरी दीवार तक आया, फिर वापिस वहां अलोंग द लेंथ उस एंड पे चला गया, तो कितनी दूर गया, तो हमने उसका डायगोनल निकाल दिया। फिर अगर ये उस एंड पे जाकर वहां ऊपर चला गया छत पे, तो बेसिकली क्या हो गया, ये क्यूब का डायगोनल हो गया, क्लियर है, या क्यूबाइड का डायगोनल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 14।